میرا نام ماریا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی زندگی آرام کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر کے جاتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت زیادہ عزت تھی۔ میری ساس مجھے آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں موہد سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں موہد کی جدائی میں بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ سردیوں میں موہد جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، موہد صاحب کا شانوں سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ تیری یہ جرت، بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے چلی جا۔ کیوں نہیں جاتی میرے سامنے سے؟ دفع ہو جا۔ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانوں کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانوں کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ شانوں ماں باپ کی اکلوتی تھی اور شانوں تھی بھی بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی مائل گوشت کا ابھار جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا، لیکن شانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ شانوں کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے رضا موہد کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانوں کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے ہی خاندان میں کسی بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے شانوں نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ میری ملازمہ کیا بےہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا بیٹا موہد شانوں کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانوں سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھے سے بات کر لی ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہیں گزارے گی، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے کر جاؤں۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانوں کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ موہد پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ موہد نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ موہد میری بات سن کر گویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے۔ شانوں سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت ماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے خیال رکھیں گی جیسے میرا رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانوں کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا،
बदज़ात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तू कैसी औरत है? वो तकलीफ के सबब कराहने लगी। रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये सब बाप के बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े असरो रसूख वाले हैं, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। मोहित साहब मेरे शौहर से ज़बरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद, मगर इन पर तो किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? शानों की बातों से साफ आया था कि उसे अपने शौहर से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये फरेब कर रही है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चल बदज़ात, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने उससे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं मोहित के पास गई। मोहित से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। उस वक्त मैं तुम्हें उस 2 टके की नौकरी के सामने कुछ न कह सकी थी, मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम हो गया तो वो क्या सोच। मोहित कहने लगा, अम्मी जान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सब मेरी खुशी में खुश हैं, सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है। इन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब बता दूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? वो बदज़ात माँ बनने वाली है। मोहित बोला, अम्मा, मुझे सब पता है। मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ निकाह करूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ ने उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज़ आप भी मान जाएं। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वो बदनसीब शानो तो अपने शौहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी, इस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। मोहित मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और शानो को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी। वैसे भी मोहित के 5 भाई इसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा जर्मनी चला गया और शानो मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे शानो का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। शानू को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शानू की तबीयत ख़राब है। मैंने नफ़रत से कहा था, जहर दे दो इसे। वो बोली, अम्मा, आप इससे इस कदर नफ़रत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी इन हालात में फंस गई है। वैसे भी मोहित हम सबको प्यारा है, इसलिए हम शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी मोहित की खातिर उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी, मैं किसी भी सूरत में इस बदज़ात को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। मैं रोज़ाना शानों के अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं इसके घर से नहीं निकाल सकती थी क्योंकि सबको इस पर नज़र थी। मुझे इससे इतनी नफ़रत हो गई थी कि मैं अब इसे जान से मारना चाहती थी। इससे नफ़रत की एक वजह ये भी थी कि मैं अपने बेटे मोहित के लिए अपनी बहन की बेटी तहमीना को अपनी बहू बनाना चाहती थी और शानों के होते हुए मोहित कभी भी तहमीना से शादी करने पर आमादा नहीं होता था। अब ये शानों की बदकिस्मती थी कि जब इसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। अब्बा बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। शानो भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी तकलीफ़ में थी। इस वक्त मैंने अपनी ख़ास खादमा की मदद से शानो को ऐसी दवाई पिला दी जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गाँव में ये खबर फैला दी कि शानो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और शानो के माँ बाप को बुलवाया तो वो भी रोते हुए आ गए। जिन औरतों ने शानो को गुस्ल दिया उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, बेगम साहिबा, शायद ये औरत जिंदा है। मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा कर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूं? जवाब में मैंने कहा था, इस
औरत की चाल चलन खराब है। इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो इसके पेट में है मेरे बेटे। मौलवी साहब आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे। मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी। मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए। मैंने इन्हें इनाम भी दिया और इस तरह शानों को जिंदा दफना दिया गया। जब रजा को अपने भाइयों के जरिए शानों की मौत का इल्म हुआ तो फौरन जर्मनी से वापस आ गया। आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोती। मेरी बड़ी बहू ने मुझे शक की निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिन बाद मोहित वापस जर्मनी चला गया और फिर वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खादिमा के जरिए न सिर्फ मोहित को सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था। मगर शानों के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा मुझसे नफरत की बना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शोहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर मुमालिक जा बसे। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सौतेलियों जैसा सलूक करते थे। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजर्बा। मोहित सबका लाडला था। मेरी इस हरकत की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है। मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को साथ रखने की सज़ा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती। खुले आसमान तले सोने से मुझे दम घुटता है। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल गुजर चुकी। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ चुके हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के इस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वहाँ तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मुझे मौत नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ जुल्म माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ़ न कर दे। मगर मैं माफ़ी मांगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़कर आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ। पास आ जाओ इस तरह किसी पर जुल्म करने से। अगर कोई मेरी तरह किसी पर जुल्म कर रहा है तो खुदा से डरो, उसकी लाठी बे आवाज़। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी गुनाह करेंगे और इसकी बाज़ परस नहीं होगी तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। कोई भी गुनाह करने से पहले 100 दफ़ा सोचें और अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में हमेशा महसूस करें। प्यारे दोस्तों, आज की मोरल कहानी आपको कैसी लगी है? मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस तरह की कहानी रोज़ हमारे चैनल पर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।